स्टूडेंट्स, आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसमें हम इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड सर्किट्स। अभी तक जो पढ़ाई थी हमारी वो डेफिनेटली स्टैटिक चार्जेस के बारे में पढ़ाई थी और अब हम मूविंग चार्जेस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन करते हैं। व्हाट एग्जैक्टली इज इलेक्ट्रिक करंट? Current, the word current itself means flow of something. When I say water current, I am referring to flowing water. When I say electric current, I am referring to flowing charge. So, electric current is nothing but flow of charge. Right? Imagine that there is a stream of charged particles, let us say positively charged particles. There is a beam of positively charged particles. ये कोई आयन्स हो सकते हैं, प्रोटॉन्स हो सकते हैं, एनीथिंग. These are positively charged particles moving from left to right in this diagram. Imagine a cross section. Imagine an area A, and let us assume that certain quantity of charge delta Q passes through this area A in a time interval of delta T. Delta Q charge passes through area A in interval delta T. Then we say that electric current through this area is delta Q by delta T. Current through the area is delta Q by delta T. Now, if the flow of charge is not uniform, it is not steady, it is changing with time, let us say, then at a particular instant of time, the current will be defined as dq by dt. dq by dt is instantaneous rate of flow of charge through this cross section. SI unit of current is, all of you know it, it is ampere. Current can be constituted by movement of charged particles, say protons, electrons, ions, any kind of charged particle. And conventionally, the direction of current is taken to be in the direction of flow of positive charge. Direction of current is in the direction of flow of positive charge. We will denote this current by I. अगर ये पार्टिकल्स निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, अगर ये एक स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इन दैट केस हम कहेंगे कि इस क्रॉस सेक्शन के थ्रू जो करंट है उसका डायरेक्शन ये है, टुवर्ड्स लेफ्ट. इफ नेगेटिव चार्ज इज फ्लोइंग लाइक दिस, इक्विवेलेंटली वी कैन ऑलवेज थिंक as if same amount of positive charge is moving in other direction. So, if there is flow of negative charge, the direction of current is opposite to the direction of flow of negative charge. और पॉजिटिव चार्ज के फ्लो की डायरेक्शन में ही हम कन्वेंशनली करंट का डायरेक्शन लेते हैं. दिस इज जस्ट ए मैटर ऑफ कन्वेंशन, नथिंग एल्स. दिस इज व्हाट वी फॉलो. अब देखो, इसी जगह पे
अगर मैं एक छोटा क्रॉस सेक्शनल एरिया इमेजिन करूं तो इस रेड एरिया से सेम डेल्टा टी टाइम में लेस अमाउंट ऑफ चार्ज विल पास, इस ब्लैक एरिया से डेल्टा टी टाइम में मोर अमाउंट ऑफ चार्ज विल पास. सो करंट थ्रू रेड एरिया is less than current through black area. Current through red area is less than current through black area, which means the way we have defined current, it will depend on choice of this cross sectional area. The larger the area, higher will be the current. The smaller the area, the smaller will be the current. We define another quantity, current density, which does not depend on this area. Before I write current density, let me make it very clear that current, though it has direction, though it has sense of direction, here we say that current is towards right, but still it is not a vector quantity because it does not obey the triangle rule of vector addition. Current is not added following triangle rule of vector addition. Therefore, despite the fact that current is having a sense of direction, it is still not a vector quantity. Current density, the next term that we are going to define, yes, it is a vector quantity. We will denote it by J, and it is a vector quantity. In this diagram, if A is the cross sectional area through which delta Q charge passes in delta T time, we say that current is delta Q by delta T. Now divide this quantity by this area and you get what is known as current density. That is, A area से delta Q charge delta T time में पास हुआ तो delta Q by delta T को हम current through this area कहते हैं. Now divide that current by this area and the quantity that you get is known as current density. So, in nutshell, current density is electric current through a unit cross sectional area. Current density is electric current through a unit cross sectional area. So, in this particular diagram, current density can be written as I by A, which is same as delta Q by delta T divided by A. This quantity will have unit of ampere per meter square. अगर ये रेड एरिया यूनिट एरिया है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर लेटर से, सो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया से जो करंट फ्लो हो रहा है उसको हम करंट डेंसिटी कहते हैं. डायरेक्शन ऑफ J vector is in the direction of flow of positive charge. If it is negative charge that is moving, then the direction of current density is taken opposite to the direction of flow. There may be instances when the considered area is not exactly perpendicular to the direction of flow of charge particles. Again, assume that these charge particles are moving from left to right, and think of a cross sectional area that is held obliquely with respect to the direction of flow. ये चार्ज पार्टिकल्स का डायरेक्शन ऑफ फ्लो है, यही हमारे करंट डेंसिटी वेक्टर का डायरेक्शन है. इस डायग्राम में ये जो सरफेस आपने लिया है इसका एरिया वेक्टर, एरिया इज अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू दी सरफेस. एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ऐसा है. लेट अस अज्यूम एरिया वेक्टर और करंट डेंसिटी के बीच का ये एंगल थीटा है.
लेट अस एज्यूम एरिया वेक्टर और करंट डेंसिटी के बीच का एंगल ये थीटा है. नाउ current density is always defined with reference to a cross sectional area that is held normal to the direction of flow of charge. चार्ज फ्लो के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर एक एरिया इमेजिन कीजिए. नाउ द अमाउंट ऑफ चार्ज क्रॉसिंग थ्रू दिस एरिया इन यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, दैट क्वांटिटी इज नोन एज करंट डेंसिटी. करंट डेंसिटी लिखते समय ये जरूरी है कि हमने यहाँ जो एरिया लिखा है, दिस इज एरिया हेल्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, बट समवेयर somebody has considered an surface area like this which is not exactly normal to the direction of flow of charge. In this case, the current through this given area, current through the given area I will be equal to J dot A, J A cos theta. क्या वजह है इसकी? ये मैं सिंपल 2 डायमेंशनल ड्राइंग बना रहा हूं. ये एरिया है, इसको ऐसा एक लाइन से दिखाया मैंने. ये एरिया वेक्टर है, ये ऐसा सरफेस है, इसके नॉर्मल एरिया वेक्टर है, और ये करंट डेंसिटी वेक्टर है जिसका डायरेक्शन हमेशा चार्ज फ्लो की डायरेक्शन में होता है, पॉजिटिव चार्ज के फ्लो की डायरेक्शन में होता है. ये समझना बेहद आसान है कि इस एरिया ए से वही चार्ज पास होगा जो चार्ज इस एरिया से पास होगा. मैं ये कह रहा हूं, इस एरिया को अगर तुम ए लिख रहे हो और इस वाले एरिया को ए डैश लिख रहे हो, इसको चार्ज फ्लो थ्रू एरिया ए इज सेम एज चार्ज फ्लो थ्रू एरिया ए डैश. ये कुछ ऐसा है, ये पानी का पाइपलाइन है. इमेजिन करो पाइप को तुमने ऐसा कट कर दिया, पानी का फ्लो ऐसा हो रहा है. फ्लो के परपेंडिकुलर ये जो एरिया है, इससे 1 सेकंड में 5 लीटर पानी पास हो रहा है. तो क्या यहाँ से 18 लीटर पानी बाहर निकलेगा? 5 ही लीटर निकलेगा पर सेकंड भाई. अगर इस सेक्शन से 5 लीटर पर सेकंड इन हुआ तो इस सेक्शन से भी 5 लीटर पर सेकंड ही बाहर जाएगा. यहाँ से 5 इन हुआ और यहाँ से 6 बाहर गया, ऐसा कैसे हो सकता है? एक कहाँ से आया? यहाँ से 5 इन हुआ, यहाँ से 3 बाहर गया, तो 2 लीटर कहाँ गया? इस पाइपलाइन में अगर फ्लो हो रहा है, एकदम कॉमन सेंस से हम बता सकते हैं कि इस एरिया ऑब्लिक एरिया के थ्रू उतना ही पानी का फ्लो होगा जितना इस नॉर्मल एरिया के थ्रू. बिल्कुल ऐसे ही अगर चार्ज का फ्लो इधर से इधर हो रहा है तो एरिया मैं ऐसा लूँ, ऐसा, या चार्ज फ्लो के परपेंडिकुलर इस एरिया का प्रोजेक्शन लूँ. ये पॉजिटिव चार्जेस ऐसे फ्लो कर रहे हैं. एरिया ए डैश और एरिया ए से पर सेकंड इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो होगा. जो चार्ज एरिया ए डैश को क्रॉस करता है वो एरिया ए को डेफिनेटली क्रॉस करेगा. जो चार्ज एरिया ए डैश को क्रॉस करता है वो एरिया ए को डेफिनेटली क्रॉस करेगा, पक्की बात है. तो हमें पूछा गया है इस एरिया से कितना चार्ज फ्लो होगा पर सेकंड. हम इस एरिया के बारे में नहीं सोचेंगे, हम सोचेंगे इस एरिया के थ्रू कितना चार्ज पास होगा पर सेकंड. तो ध्यान से आप ड्राइंग देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि यह एंगल थीटा है. एरिया ए डैश जो है वो एग्जैक्टली ए कॉस थीटा के इक्वल है. ए कॉस थीटा के बराबर है ये एरिया. इस एरिया के बजाय हम ले रहे हैं एक ऐसा एरिया, ऐसा. इस एरिया का प्रोजेक्शन परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ फ्लो, और ये जो एरिया होगा दिस विल बी इक्वल टू
ए कॉस थीटा। अगर यहाँ करंट डेंसिटी J है तो J का मीनिंग है दिस इज एरिया हेल्ड परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ चार्ज फ्लो। यहाँ यूनिट एरिया से 1 सेकंड में जो चार्ज पास हो रहा है वही करंट डेंसिटी है। करंट डेंसिटी इज करंट थ्रू दिस एरिया पर यूनिट एरिया, करंट डिवाइडेड बाय दिस एरिया। तो इस यहाँ यूनिट एरिया से 1 सेकंड में कितना चार्ज पास हो रहा है J। इस एरिया से 1 सेकंड में कितना चार्ज पास होगा पूरे एरिया से J इंटू ए डैश। यूनिट एरिया से J, ए डैश एरिया से J इंटू ए डैश। J इंटू ए डैश का मतलब हुआ J ए कॉस थीटा, ए डैश इज ए कॉस थीटा। तो इतना ही चार्ज पर सेकंड यहाँ से पास हो रहा है, उतना ही चार्ज यहाँ से पर सेकंड पास हो रहा है, इसलिए इस एरिया के थ्रू जो करंट होगा इट विल बी इक्वल टू J ए कॉस थीटा। तो याद रखेंगे करंट डेंसिटी एक वेक्टर है जिसका डायरेक्शन हमेशा चार्ज फ्लो की डायरेक्शन में होता है। अगर एरिया वेक्टर का डायरेक्शन उधर नहीं है, आपने एरिया को ऐसा ऑब्लिक रखा है, देन द करंट थ्रू दिस एरिया इज J ए कॉस थीटा, राइट, J डॉट ए। यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी विल बी एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। एकदम सिंपल सा एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। अ कंडक्टिंग वायर हैज अ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन of radius r. The current density varies with distance r from the axis as एक सिलेंड्रिकल वायर है, जैसा नॉर्मल वायर आप देखते हो, उस वायर का क्रॉस सेक्शनल रेडियस कैपिटल R है। उस वायर में एक इलेक्ट्रिक करंट है और उसके पूरे क्रॉस सेक्शन में करंट डेंसिटी कांस्टेंट नहीं है, ऐसा कुछ कहा जा रहा है। बहुत मैग्नीफाई करके बना रहा हूं। ये एक सिलेंड्रिकल वायर है और ये उसका सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है। ठीक है, इस वायर में करंट का फ्लो हो रहा है, ये रेडियस कैपिटल R है, ये सिलेंडर की एक्सिस है। क्वेश्चन कह रहा है कि जो करंट डेंसिटी है वो अगर इस पूरे क्रॉस सेक्शन में यूनिफॉर्म होती तो करंट हम लिखते J इंटू दिस क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्वेश्चन कह रहा है कि नहीं, करंट डेंसिटी यूनिफॉर्म नहीं है। करंट डेंसिटी इस एक्सिस से डिस्टेंस r के साथ बढ़ती जा रही है। तो बताइए कि इस वायर के थ्रू करंट कितना फ्लो हो रहा है। तो हम ऐसा इमेजिन करेंगे कि मान लो R रेडियस और dr विड्थ का ये रिंग इमेजिन करो। ये जो मैं रेड कलर से पेंट कर रहा हूं, इस पेंटेड एरिया के थ्रू करंट कितना है, हम ये सोचते हैं। अगर हम इसको इधर से देख रहे हैं, ये वायर है, इस सर्कल को यहां से देख रहे हैं, तो बेटर डायग्राम ऐसा होगा कि मैं सिंपली ऐसा बना दूं। ये R रेडियस का सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है
वायर ऐसे आपकी तरफ, और हमने कहा यहाँ पे कि मान लो आर रेडियस का dr विड्थ वाला ये जोन इमेजिन करो, चार्ज पार्टिकल्स का फ्लो ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो अगर करंट डेंसिटी हर जगह कांस्टेंट होता, करंट डेंसिटी का डायरेक्शन क्या, करंट डेंसिटी एक वेक्टर है, अगर पॉजिटिव चार्ज ऐसे फ्लो हो रहा है तो करंट डेंसिटी वेक्टर का डायरेक्शन ये है, इस डायग्राम में तुम्हारी तरफ आता हुआ, हम इधर से देख रहे हैं। यूनिफॉर्म होता करंट डेंसिटी इंटू पाई आर स्क्वायर, यही करंट होता, यूनिफॉर्म नहीं है। तो हमने यहाँ से आर डिस्टेंस पे डी आर विड्थ का एक सर्कुलर जोन लिया, और हम इस सर्कुलर जोन से करंट लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, करंट डेंसिटी कैसा है, फिर से ध्यान देना, ऐसे दिखा दूं, इस सर्कल के अंदर डॉट, ये सिंबल यूज करते हैं आउटवर्ड डायरेक्शन को दिखाने के लिए। ये हम बता रहे हैं कि यहाँ जो करंट डेंसिटी है इस पूरे क्रॉस सेक्शन में, ये तुम्हारी तरफ है, पॉजिटिव चार्जेस किधर फ्लो हो रहे हैं, तुम्हारी तरफ आ रहे हैं, ऐसे। इस बैंड में करंट कितना है, करंट पर यूनिट एरिया J इंटू 2 पाई आर डी आर। ये जो रेड एरिया है, ये जो बैंड है, बैंड, इसका एरिया 2 पाई आर सर्कम्फ्रेंस इंटू विड्थ डी आर, 2 पाई आर सर्कम्फ्रेंस इंटू विड्थ डी आर। ये जो बैंड है इसका एरिया 2 पाई आर डी आर, 2 पाई आर डी आर इंटू जे। जिनको ये समझ में नहीं आता उनको एक बार मैं थोड़ा सा 2 मिनट और समय लेके समझा रहा हूँ। ये जो रिबन दिख रहा है तुम्हें, ये जो स्ट्रिप दिख रहा है, इसका एरिया लिखने के लिए ऐसे इमेजिन करो कि तुमने इसको ऐसे कैंची से काट दिया और इस लाल बैंड को ऐसा सीधा कर दिया, इस लाल बैंड को ऐसा सीधा कर दिया। इस लाल बैंड की लेंथ इस सर्कम्फ्रेंस की इक्वल होगी 2 पाई आर, ये लेंथ, और इसकी जो विड्थ है ये डी आर। तो ये जो स्ट्रिप का एरिया हुआ वो 2 पाई आर डी आर हुआ इंटू जे। इतना करंट है इस लाल स्ट्रिप के थ्रू। तो यहां से लेकर यहां तक ऐसे जितने भी सर्कुलर स्ट्रिप्स बनेंगे, जैसे एक स्ट्रिप और दिखा रहा हूं ऐसा, यहां से लेकर यहां तक ऐसे जितने भी सर्कुलर स्ट्रिप्स बनेंगे, उन सब में करंट को ऐड कर दें तो पूरे क्रॉस सेक्शन के थ्रू करंट होगा। सो द टोटल करंट थ्रू द वायर विल बी इंटीग्रेशन ऑफ दिस। जे की जगह ए आर लिख दीजिए, ए कांस्टेंट है, ये ऐसा बन जाएगा, जे की जगह ए आर लिखा। स्मॉल आर इज चेंजिंग फ्रॉम 0 टू कैपिटल आर। 0 टू कैपिटल आर मतलब यहाँ से यहाँ तक जितने भी ऐसे बैंड्स हैं सबको कंसिडर किया। सो करंट विल बी 2/3 पाई ए आर क्यूब। तो अगर करंट डेंसिटी वेरिएबल है तो आपको करंट निकालने के लिए इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इसको आप मोटा मोटी ऐसे याद रख सकते हैं, करंट इज इंटीग्रेशन ऑफ जे डॉट डी ए। करंट ओवर ए सरफेस एरिया इज इंटीग्रेशन ऑफ जे डॉट डी ए। यहाँ हमने यही किया, जे आपकी तरफ है और ये जो लाल स्ट्रिप है इसका एरिया वेक्टर भी तुम्हारी तरफ ही है। तो जे डॉट डी ए क्या हुआ, जे इंटू डी ए, दिस एरिया इंटू कॉस 0 डिग्री, जे इंटू डी ए इंटू कॉस 0 डिग्री, उसका इंटीग्रेशन। तो अगर करंट डेंसिटी वेरिएबल हो तो टोटल करंट लिखने के लिए आपको ये करना पड़ सकता है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस हमें देखने को नहीं मिलेंगे। हम मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे ही सिचुएशन को डिस्कस कर रहे होंगे जहाँ करंट डेंसिटी कांस्टेंट है थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शन। अब देखो, एक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है, उस इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में जो करंट का फ्लो है वो पॉजिटिव निगेटिव दोनों तरह के आयंस के मूवमेंट की वजह से हो सकता है। फ्री स्पेस में एक चार्ज पार्टिकल्स की बीम है, अल्फा पार्टिकल्स की बीम है, प्रोटॉन की बीम है, वहाँ भी करंट हो सकता है। कंडक्टर्स में, कॉपर के वायर में, जो घर में कॉपर एल्युमिनियम के वायर हैं, उनमें करंट की मुख्य वजह
फ्री इलेक्ट्रॉन्स होती है, उनमें करंट की बेसिक वजह होती है फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट। एक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में आयंस का मूवमेंट, फ्री स्पेस में बीम ऑफ मूविंग चार्ज पार्टिकल्स, दैट इज ऑल्सो ए करंट। पर डेली लाइफ में मोस्टली जो हम करंट एनकाउंटर करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट, दैट इज करंट इन कंडक्टिंग वायर्स, वायर मेड ऑफ कॉपर और एल्युमिनियम और एनी अदर मेटल। ये जो करंट है, दिस करंट हैपन्स ड्यू टू मूवमेंट ऑफ free electrons in the conductor. So, in this particular chapter, we will be mostly studying about that kind of current only. So, what we do next is, we will try to understand the mechanism of current flow in a conductor. A conductor has plenty of free electrons. A conductor has plenty of free electrons, and those free electrons move to make a current. That is important. But what exactly is the mechanism of current flow in conductor? Let us try to understand that in a slight detail. Suppose this is a piece of copper. Okay, there are fixed atoms, rather ions. क्यों? शायद पिछले चैप्टर में मैंने आपसे कहा था कि एक कंडक्टर में एटम्स बहुत पास पास होने की वजह से एटम के आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं। उस इंटरैक्शन में, उस धक्का मुक्की में, ऑन एन एवरेज हर एटम से एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है। कॉपर की बात करें तो ऑन एन एवरेज 1 या 2 इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है। तो जितने एटम है उतने ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। हर एटम से एक इलेक्ट्रॉन आज़ाद हो गया, फ्री हो गया। फ्री हो गया तो वो जो एटम एज सच है वो खुद एक आयन बन गया, ठीक है। पर वो जो आयन है या एटम, जो बोलना है बोलो उसको, वो अपने लोकेशन पे फिक्स्ड है। इट इज़ नॉट मूविंग हियर एंड देयर। बट जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको मैं यहाँ लाल कलर में दिखा रहा हूँ। अगर हर एटम ने एक इलेक्ट्रॉन फ्री किया है तो जितने एटम हैं उतने ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। मैंने बहुत थोड़ी सी काउंट दिखाई है। इतने बड़े पीस में तो मोल्स एंड मोल्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, मोल्स एंड मोल्स ऑफ एटम्स है। जितने एटम उतने फ्री इलेक्ट्रॉन। नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल वैसे ही मूव कर रहे होते हैं जैसे इस कमरे में ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स, जैसे इस कमरे में ऑक्सीजन नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स रैंडमली डिफरेंट स्पीड से जिगजैग पाथ पे यहाँ वहाँ चल रहे हैं। वैसे ही ये इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल गैस मॉलिक्यूल्स की तरह रैंडमली डिफरेंट स्पीड से यहाँ वहाँ जिगजैग पाथ पे चल रहे हैं। जिगजैग पाथ इसलिए कि एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन एक सीधी डायरेक्शन में चलता है तो बहुत जल्दी वो किसी चीज़ से जाकर टकरा जाता है। मोस्टली ये जो आयोनिक लैटिस है, ये जो एटम्स का लैटिस है, उसमें किसी न किसी चीज़ से वो टकराता रहता है। तो एक टिपिकल इलेक्ट्रॉन चला और वो इस पर्टिकुलर एटम से टकराया। टकराते ही उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन एकदम रैंडमली चेंज हो सकता है। अभी वो यहाँ जा रहा था, वो इधर जाने लगा। इस एटम से टकराने पे उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन फिर से रैंडमली चेंज हो गया, वो यहाँ टकराया। फिर से रैंडम चेंज हुआ, वो यहाँ टकराया। फिर से रैंडम चेंज हुआ, वो यहाँ टकराया। फिर से रैंडम चेंज हुआ, वो यहाँ गया, इस बार यहाँ गया, सो ऑन सो फोर्थ। तो एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन
रैंडमली यहां वहां जहां तहां मूव कर रहा है। फ्री इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं, सारे फ्री इलेक्ट्रॉन ऐसे ही मूव कर रहे हैं। इसको मोटा मोटी तुम ऐसे सोचो कि इस रूम को एक बड़ा बॉक्स मान लो। एक बड़े बॉक्स में बहुत सारी मधुमक्खियां हैं, हनी बीज हैं, मधुमक्खी। वो मधुमक्खियां कैसे मूव करेंगी? एकदम रैंडमली यहां वहां जहां तहां एकदम इधर उधर भाग रही हैं। बिल्कुल वैसे ही ये इलेक्ट्रॉन्स भाग रहे हैं। पल पल उनका डायरेक्शन चेंज हो जाता है बिकॉज ऑफ कोलिजन्स। तो मैं यहां लिख देता हूं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव randomly inside the metal, inside the conductor at high speed. नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे एक कॉपर के अंदर टिपिकली एक इलेक्ट्रॉन की स्पीड 10 to the power 5 मीटर पर सेकेंड या 10 to the power 6 मीटर पर सेकेंड के ऑर्डर की हो सकती है। टिपिकल स्पीड कुड बी 10 to the power 5 मीटर पर सेकेंड। बहुत हाई स्पीड में चल रहा है। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, गैस मॉलिक्यूल्स की तरह। ये जस्ट एक टिपिकल नंबर लिखा है मैंने टू मेक you feel that this number is really high. The electrons are moving at very large speed. They undergo frequent collisions and thereby the direction of their motion changes randomly. So there is frequent collision and direction of motion changes frequently. ठीक है? We can define an average relaxation time. Relaxation time means इलेक्ट्रॉन अभी टकराया फिर टकराया, दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच का टाइम इंटरवल। ये मटेरियल टू मटेरियल अलग होगा, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगा। ये जो रैंडम मोशन की स्पीड है टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये जो स्पीड है और बढ़ जाएगी। दो पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस फिक्स है, स्पीड बढ़ गया तो और जल्दी जल्दी टकराएंगे शायद। मटेरियल अलग है, कॉपर अलग है, एल्युमिनियम अलग है, उसमें एटम्स के बीच का डिस्टेंस स्पेसिंग अलग है। तो अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग टेम्परेचर पे एक इलेक्ट्रॉन अभी टकराया और नेक्स्ट कोलिजन हुआ, इसके बीच का जो टाइम गैप है इट विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट मटेरियल, इट विल बी डिफरेंट फॉर सेम मटेरियल एट डिफरेंट टेम्परेचर्स। द टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स इज नोन एज रिलैक्सेशन टाइम। दिस इज नॉट ए फिक्स टाइम। इनफैक्ट हो सकता है अभी एक कोलिजन हुआ, अगला कोलिजन बहुत जल्दी हुआ, उसके बाद वाला कोलिजन बहुत टाइम लगा, द एवरेज ऑफ दैट। सो रिलैक्सेशन टाइम इज एवरेज टाइम interval between two successive collisions of an electron. Please समझिए, this will have different values for different material. It will have different values for same material at two different temperatures. Relaxation time in general will decrease with rise in temperature. टेम्परेचर बढ़ाने से स्पीड बढ़ जाएगी और रिलैक्सेशन टाइम और घट जाएगा। Now, so if I have a piece of copper
free electrons are moving randomly inside it. So there are moving charge particles inside this material. Does it mean that this material is already having a current because there are moving charge particles? The answer is no. Because if you imagine a piece of copper wire, let us say this is a copper wire. Yes, it is truth that free electrons are moving randomly. But if you imagine a cross-sectional area anywhere in this piece of wire, there will be no net flow of charge through this cross-section in a finite interval of time. एक finite interval, let us say 1 second या 2 second या 0.1 second, say 0.5 second. हम 0.5 second में ऑब्जर्व करते हैं कि लाखों इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चले गए, लाखों इलेक्ट्रॉन जो है इस क्रॉस सेक्शन को क्रॉस कर गए. पक्की बात है कि उस 0.5 सेकेंड में ऑलमोस्ट सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लाखों इलेक्ट्रॉन उल्टे डायरेक्शन में भी इस क्रॉस सेक्शन को क्रॉस कर गए. एक क्रॉस सेक्शन इमेजिन करो कॉपर के वायर के अंदर, तो इलेक्ट्रॉन्स चारों तरफ हैं और रैंडमली मूव कर रहे हैं. तो अगर 0.5 सेकेंड में तुमने देखा कि 5 लाख इलेक्ट्रॉन इधर चले गए, तो ध्यान से देखो उसी टाइम इंटरवल में 5 लाख इलेक्ट्रॉन इधर भी चले गए, बिकॉज पॉपुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज लार्ज एंड ऑल ऑफ देम आर मूविंग रैंडमली. इट इज समथिंग लाइक सेइंग दैट अगर एक दिन में दिल्ली से मुंबई लेट अस से 20,000 लोग गए दिल्ली से मुंबई, तो पक्की बात है कि मुंबई से दिल्ली भी इतने ही लोग गए होंगे, प्लस और माइनस 1-2 डजंट मैटर, बट मोर और लेस सेम नंबर ऑफ पीपल मूव फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली ऑल्सो. जो प्लेन दिल्ली से मुंबई गई भर के, वो मुंबई से दिल्ली भी भर के ही आई, बिकॉज पॉपुलेशन ऑफ दीज 2 cities इज लार्ज एंड मूवमेंट इज क्वाइट रैंडम. कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा किसको कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हो तुम? नहीं. तो it will almost happen this way that same number of people move both way on any given day. So similarly, the population of free electrons is large, infinite on both the sides, and all of them are moving randomly. So most likely through a cross section, same number of particles will cross both way, and so there is no net flow of charge through this cross section. इस क्रॉस सेक्शन से नेट फ्लो ऑफ चार्ज 0 है, जितना चार्ज इधर गया उतना ही इधर है. सो देयर इज नो नेट करंट. सो despite movement of electrons, there is no net current through any cross section, right? There is no current. Okay. Though everything is not static, there are particles which are moving inside this piece of conductor, still through a given cross section the current is 0. That is what we understand. Okay. Now imagine that this piece of copper wire is connected to a battery. ठीक है. कंडक्टिंग. अच्छा एक बात और बता दूं मैं पहले, इस रैंडम मोशन की वजह से ऐसा नहीं, कभी भी ऐसा नहीं होगा शायद कि यहाँ के सारे इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, यहाँ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो गई, यहाँ बहुत हाई होगी. इट विल नेवर हैपन लाइक दैट. अगर यहाँ से 1 करोड़ इधर आए तो 1 करोड़ यहाँ से इधर भी चले गए. तो किसी भी इस मटेरियल का इतना छोटा टुकड़ा अगर काट लूँ और यहाँ से इतना छोटा टुकड़ा काट लूँ, तो यहाँ और यहाँ इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी सेम ही होगी. तो ऐसा नहीं होगा कभी कि सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चले गए या यहाँ से यहाँ चले गए. हर जगह रफली डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम विल स्टे कांस्टेंट. दैट इज व्हाट वी अंडरस्टैंड. नाउ थिंक दैट दिस पीस ऑफ कंडक्टर हैज बीन कनेक्टेड टू ए बैटरी. इसको और थोड़ा थिक करके बना रहा हूँ. Battery is a
device for maintaining constant potential difference, V volt potential difference, right? Say length of this conducting wire is L. Cross sectional area is A. Okay. So what does a battery do? What battery will do is, it will create a potential difference of V volt between the terminals of this conductor. Actually, this is also a conductor, this is also a piece of copper similar to this one, but just for the sake of simplicity, imagine that length of this wire is negligible. ये बिल्कुल बैटरी के पॉजिटिव एंड से बहुत छोटे वायर से कनेक्टेड है, ऐसा सोच लो एक मिनट, और ये निगेटिव वायर निगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है. इग्नोर दीज वायर्स फॉर ए मोमेंट, जस्ट इग्नोर, जस्ट इमेजिन कि ये पॉजिटिव एंड से कनेक्टेड है और ये निगेटिव एंड से कनेक्टेड है. दिस इज द वायर इन द सर्किट, ऐसा इमेजिन करो जस्ट एक मिनट के लिए. नाउ द बैटरी establishes a potential difference of V volt between the two ends of this wire, right? Establishing a potential difference means there is an electric field inside the conductor. ये L डिस्टेंस चलने पे V वोल्ट का ड्रॉप हुआ, ये हाई पोटेंशियल पे, ये लो पोटेंशियल पे, यहाँ से यहाँ जाने पे V वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, तो रास्ते में इलेक्ट्रिक फील्ड जरूर थी. इलेक्ट्रिक फील्ड होने से ही पोटेंशियल में चेंज होगा. तो E इंटू एल इज V, और यू कैन से E इज इक्वल टू V बाय L. सो थ्रू आउट द कंडक्टर, इन साइड द मीट ऑफ द कंडक्टर, देर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड. देर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड established inside the meat of the conductor. An electric field E is equal to V by L is established inside the conductor. Some of you might be wondering, what am I saying? आज से पहले मैं कहता था कंडक्टर के मीट में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, और आज अचानक से मैं कह रहा हूँ कि देयर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड इन द कंडक्टर. Now, the two situations are different. When it is electrostatics, there is no movement of charge. Everything is static. जिस चार्ज को जहाँ जाना था चला गया, अब रुक गया, ठहर गया. जब कंडक्टर में कोई चार्ज का मूवमेंट नहीं हो रहा है, उस समय कंडक्टर की मीट में हर जगह फील्ड जीरो है. इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कंडक्टर की मीट में है तो चार्जेस जरूर मूव करेंगे. इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज को खदेड़ेगी, दौड़ाएगी, इजंट इट? तो जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे थे, हम उस सिचुएशन को डिस्कस करते थे व्हेन एवरीथिंग इज स्टैटिक. ठीक है, थोड़ी देर के लिए कंडक्टर में चार्ज मूव हुआ, अब रुक गया, बस. हमारी पढ़ाई यहाँ शुरू होती है कि जब चार्जेस ठहरे हुए हैं तब कंडक्टर की मीट में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, भाई जीरो है. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी तब तो वो चार्जेस को दौड़ाएगी. अभी हम कह रहे हैं कि नहीं, चार्ज का फ्लो हो रहा है, जैसा अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे. तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है कंडक्टर की मीट में, ये तो होना पड़ेगा भाई, फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड है, बैटरी है तो पोटेंशियल डिफरेंस तो बनाएगी भाई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा. अब इलेक्ट्रिक फील्ड है इसलिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ के फ्री इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स लगाएगी. ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ के जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, उन सभी फ्री इलेक्ट्रॉन्स को टुवर्ड्स लेफ्ट पुश करना शुरू कर देगी. यहाँ मैं एटम्स को नहीं दिखा रहा हूँ, ये सब फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं. इन सभी फ्री इलेक्ट्रॉन्स को इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा धकेलना शुरू कर देगी, ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर निगेटिवली चार्ज. तो जैसे ही एक कंडक्टर के अक्रॉस तुम बैटरी लगाते हो, बैटरी एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना देती है कंडक्टर के अंदर, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के सभी फ्री इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर एक फोर्स अप्लाई करना शुरू करती है. अब इस फोर्स की वजह से क्या होगा?
this electric field exerts a force on each free electron in a direction opposite to itself, in a direction opposite to the electric field. The electric field will exert force on free electrons, and the direction of force will be opposite to the electric field. Now, each and every free electron begins to experience this force. What will happen because of this? Because of this force, the entire group of electrons, the entire group of free electrons, say a cloud of free electrons, it starts drifting towards left. It starts moving gradually towards left. मुश्किल है, 1 मिनट लिखो, समझाता हूं. Due to this, the entire cloud of free electrons starts drifting opposite to the field. The drift speed is typically small. It may be of the order of 10 to the power minus 2, या ऐसा लिख देता हूँ 0.1 मिलीमीटर पर सेकेंड, और इवन स्मॉलर. क्या कह रहा हूँ मैं कुछ ऐसा कह रहा हूँ. थोड़ा मुश्किल है समझना, लेकिन ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूँ. फिर से जरा हमारे उस मधुमक्खियों वाले एग्जाम्पल को याद कीजिए. ये एक बॉक्स है, मान लो ट्रेन है, ट्रेन का एक डब्बा है, ऐसा सोचो. इसके अंदर बहुत सारी मधुमक्खियां हैं. ये सब रैंडमली यहाँ वहाँ जिग जैग पाथ पे बहुत तेजी से इधर उधर मूव कर रही हैं. रैंडमली अपना डायरेक्शन चेंज कर लेती हैं, एकदम जू 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 जू. इस रैंडम मोशन की वजह से, जो बहुत स्पीड में हो रहा है, इस रैंडम मोशन की वजह से किसी भी क्रॉस सेक्शन के थ्रू कोई करंट है क्या? नहीं. जितनी मधुमक्खियां इधर गई उतनी मधुमक्खियां इधर आई. सो नेट मधुमक्खी करंट इज 0. ठीक है. अब इमेजिन करो, बाहर से मैं सपोज इस रेल के डब्बे को ऐसे धक्का दूं और ये पूरा का पूरा डब्बा ऐसे चल पड़े. मधुमक्खियों का वो जो मोशन है वो चल रहा है. That random motion is still there. That random motion does not produce any current. The random motion of all those honeybees is still going on. But what is happening now, if I begin to move this wagon, then through any cross section, यहाँ एक क्रॉस सेक्शन ले ले या यहाँ एक ले लो क्रॉस सेक्शन, चलो यहीं पे ले लो, ऐसा इमेजिन करो. मान लो इसके अंदर 10 करोड़ मधुमक्खियाँ हैं, और जस्ट इमेजिन करो कि 2 सेकंड में ये पूरा वैगन इस सेक्शन को क्रॉस कर गया. तो 10 करोड़ मधुमक्खियां 2 सेकंड में इस क्रॉस सेक्शन से पार हो गई. अगर ये पूरा रेलवे वैगन 2 सेकंड में यहां से आगे निकल गया, तो ये पूरी 10 करोड़ मधुमक्खियां इस सेक्शन से 2 सेकंड में आगे निकल गई. तो इस क्रॉस सेक्शन से मधुमक्खी करंट कितना हुआ? 10 करोड़ बाई 2 सेकेंड, 5 करोड़ पर सेकेंड. ये जो मोशन है इनका रैंडम मोशन, दिस डज नॉट कंस्टिट्यूट ए करंट. लेकिन ये पूरा ग्रुप ऑफ मधुमक्खी अगर ऐसे स्लोली मूव करने लगे, वो खिटर पिटर चल रहा है, दैट मोशन इज स्टिल कंटिन्यू, बट इट विल नॉट क्रिएट एनी करंट. द एंटायर ग्रुप ऑफ हनी बीज स्टार्ट्स ड्रिफ्टिंग. दिस ड्रिफ्ट, द होल थिंग इज मूविंग. दैट रैंडम मोशन कंटिन्यूज इनसाइड, but the whole thing is moving now. This motion is drift, and this is reason behind current. Similar thing happens here.
those electrons, they are moving randomly in every possible direction with very high speed. Yes, those electrons are randomly moving with very high speed in every possible direction on zigzag path. But that random motion at very high speed does not create any current. Now, when you add a battery like this, there is an electric field. This electric field pushes each and every electron towards left, opposite to it, the direction of field. So, that random motion is still there, but superimpose on that another motion that is being created because of this continued force on each and every electron towards left. वो रैंडम मोशन है, पर उसके ऊपर एक और मोशन सुपर इम्पोज करो. रैंडम मोशन किसी भी तरीके से चेंज नहीं हुआ, इट इज स्टिल गोइंग ऑन. बट नाउ द whole group of electrons, cloud of electrons means the whole group of free electrons, the whole thing is experiencing a force towards left. So that whole cloud begins to move like this. Yes, random motion is still there, but just like the whole group of honeybees is moving here, similarly the whole group of electron begins to move towards left. This causes current. अगर इस क्रॉस सेक्शन से, इस मोशन की वजह से 2 माइक्रोकूलम चार्ज पास हो गया 1 सेकेंड में, तो वी विल से द करंट इज 2 माइक्रोकूलम पर सेकेंड, दैट इज 2 माइक्रो एम्पियर होगा ना. दैट मोशन इज स्टिल कंटिन्यूस, बट नाउ द होल क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मूविंग स्लोली लाइक दिस. कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि तो थोड़ी देर में सारे इलेक्ट्रॉन यहां से इधर चले जाएंगे. नो, इलेक्ट्रॉन्स डेफिनेटली यहां से मूव हुए, बट दिस इज व्हाट बैटरी डज. ये इलेक्ट्रॉन बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में इन हो गए एंड द सेम अमाउंट ऑफ चार्ज एग्जिट्स फ्रॉम दिस नेगेटिव टर्मिनल. सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां से एग्जिट हुए और इधर इन हो गए. तो कंटिन्यूअस फ्लो होगा. जैसे ऐसा एक पानी का पाइपलाइन है, यहाँ एक पंप लगा है, मान लो 1 मिनट के लिए ऐसा सोचो, और ये पंप कर रहा है पानी को. पानी ऐसे जा रहा है, यहाँ से आ रहा है, इधर जा रहा है. तो किसी भी समय ये पंप अगर 10 लीटर पानी पर सेकंड पंप कर रहा है, तो यहाँ से 10 लीटर पर सेकंड फ्लो हो रहा है, यहाँ से 10 लीटर पर सेकंड फ्लो हो रहा है, यहाँ से भी 10 लीटर पर सेकंड फ्लो हो रहा है. बिल्कुल ऐसे ही यहाँ है. ये इलेक्ट्रॉन अगर 2 माइक्रोकूलम चार्ज पर सेकंड यहाँ से एग्जिट हो रहा है, तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में गया, उतना ही चार्ज 2 माइक्रोकूलम निगेटिव चार्ज बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से बाहर निकला और वो यहाँ इन हो गया. तो ये जो एक्चुअली एक क्लोज लूप है, जिसमें ऐसा दिखा रहा हूँ, एक्चुअल सर्किट ऐसा है, ये कॉपर का वायर है और ये हमारी बैटरी है. एक्चुअल ऐसा है, बैटरी के पॉजिटिव निगेटिव टर्मिनल को तुमने एक वायर से जोड़ दिया, ऐसा सोचो. तो जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक लूप में मूव कर रहे हैं. इलेक्ट्रॉन्स ना तो क्रिएट हो रहे हैं और ना उनका खर्च हो रहा है कहीं. ये बैटरी से इलेक्ट्रॉन निकलते जा रहे हैं, बैटरी यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेके इधर ट्रांसफ़र कर देती है, ऐसा सोचो. ये इलेक्ट्रॉन, हर जगह का इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ता जा रहा है. ये इलेक्ट्रॉन यहाँ गया तब तक ये यहाँ आ गया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ गया तब तक यहाँ से यहाँ लोग आ गए, जब तक ये यहाँ गया तब तक यहाँ से यहाँ आ गए, जब तक ये यहाँ गया तब तक यहाँ से यहाँ आ गए. ये कंटिन्यूअस साइकिल है. सो बैटरी एक तरह से जैसे पानी का पंप है, वैसे ही बैटरी चार्ज का पंप है. वो कंटिन्यूअसली इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से उठा के यहाँ रख रही है, इस एंड से उठा के इस एंड पे रख रही है. सो एक कंटिन्यूअस सर्कुलेशन ऑफ चार्ज विल बी मेंटेन्ड एज लॉन्ग एज बैटरी इज देयर, एंड दिस कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ चार्ज इज इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट का डायरेक्शन ये है, पर कन्वेंशनली हम कहते हैं कि यहाँ करंट का डायरेक्शन इधर है. सो करंट का फ्लो इस सर्किट में ऐसा हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहे हैं, और हम कहते हैं करंट का फ्लो ऐसा हो रहा है. सो द स्पीड एट विच द एंटायर ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन मूव्स इज वेरी स्लो. इट इज लाइक ये मधुमक्खियां बहुत स्पीड पे चल रही हैं, बट द होल वैगन इज मूविंग वेरी स्लोली. तो उनके खिटर पिटर रैंडम मोशन की वजह से देयर इज नो करंट, बट दिस होल क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन मूव्स वेरी स्लोली, टिपिकली एट स्पीड लेस देन मिलीमीटर पर सेकेंड. 1 मिलीमीटर पर सेकेंड बहुत बड़ा हो गया. So 0.1 millimeter per second could be a typical value of drift speed.
This speed is known as drift speed, and this is responsible for electric current in a conductor. अब इतनी स्लो अगर ड्रिफ्ट स्पीड है तो किसी कंडक्टर में करंट कभी बड़ा होगा ही नहीं, बहुत छोटा होगा। नहीं, करंट बड़ा हो सकता है बिकॉज पॉपुलेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज वेरी हाई। तो डिस्पाइट द फैक्ट कि ये बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं, जैसे मधुमक्खियाँ 10 करोड़ हैं और 2 सेकंड में यहाँ से पूरा वैगन क्रॉस हो गया, बहुत स्लो स्पीड है इसकी, 2 सेकंड लगा। अब यहाँ 10 करोड़ की बजाय अगर 20 करोड़ मधुमक्खियाँ होती, सेम स्पीड से वैगन चलता, तो यहाँ से 2 सेकंड में 20 करोड़ पार हो जाती है इस पर, तो करंट बड़ा हो जाता ना। तो कंडक्टर्स के अंदर टिपिकली फ्री इलेक्ट्रॉन्स की पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, तो डिस्पाइट द स्पीड बीइंग स्लो द करंट मे बी वेरी हाई। चलो, drift speed, a simple estimate shows that drift speed of free electrons will be approximately equal to E by m into tau। ये डेरिवेशन मैं नहीं कर रहा हूँ, बेसिकली एवरेजिंग है। इस फोर्स की वजह से जो सभी इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव कर रहे हैं, सिर्फ इस फोर्स की वजह से, जो इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से आया, व्हाट विल बी द एवरेज स्पीड अक्वायर्ड बाय दोज इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लगने से कुछ लोग ऐसा सोच रहे हैं कि अच्छा इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगने लगा तो उसकी स्पीड तो बढ़ती चली जाएगी, एक्सेलरेट हो रहा है वो, ऐसा नहीं हो पाता। एक इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से एक्सेलरेट हुआ, लेकिन अगले ही मोमेंट कहीं टकरा गया। ये जो कोलिजन हुआ उसमें उसने जो काइनेटिक एनर्जी गेन की थी ना, वो खो दी, इस एटम को ठोकर मारा, ऐसा सोचो उसको दे दी। फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड ने उसको एक्सेलरेट किया, उसकी स्पीड तनी थोड़ी सी बढ़ी और वो फिर से किसी चीज़ से टकरा गया, फिर से अपनी काइनेटिक एनर्जी खो दी। तो अरबों खरबों मोल्स एंड मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रिक फील्ड उनको स्पीडअप करती है, एक्सेलरेट करती है, और वो टकराते हैं और वो अपनी काइनेटिक एनर्जी खो देते हैं। इस वजह से ये जो वायर है गर्म होने लगता है। क्यों? क्योंकि मोल्स एंड मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन दे एक्वायर काइनेटिक एनर्जी बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इन कोलिजन दे लूज दैट काइनेटिक एनर्जी। अल्टीमेटली इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू heat. So any wire will get heated up when electric current flows through it. When there is an electric current, any wire gets heated up. Reason? Electric current means there is an electric field in the wire which is pushing the free electrons, and those electrons, once they acquire a little bit of energy, kinetic energy, they collide with something and lose that energy. That energy gets converted into heat. So because large number of electrons are doing same thing, so little bit of heat lost by all the electrons makes a good amount of heat loss. So the wire becomes hot basically. So it can be proved that the average drift speed acquired by the cloud of electron is given by this formula. E stands for charge on an electron, small e. This is electric field, m is mass of an electron, and tau is the relaxation time, the typical time interval between two successive collisions of an electron. So आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स है इतना, फोर्स बाय मास, ये इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन है इनटू रिलैक्सेशन टाइम, AT, एक्सेलरेशन इनटू टाइम। ए एक्सेलरेशन इलेक्ट्रॉन का हुआ और टाउ सेकेंड तक वो फ्री रहा चलने को, उसके बाद तो वो टकरा ही गया। तो ड्यूरिंग दैट इंटरवल v इज इक्वल टू u प्लस AT, ऐसा सोचो, इनिशियल वेलोसिटी 0 मान लो, तो बिकॉज ऑफ एक्सेलरेशन
speed acquired by that electron will be E by m into tau. ये याद करा रहा हूँ, this is not the way to derive it. हमें स्टैटिस्टिकल एवरेजिंग करनी पड़ेगी और थोड़े डिफरेंट तरीके एवरेजिंग के यूज़ करने से थोड़े डिफरेंट आंसर भी आते हैं. किसी बुक में आपको यही एक्सप्रेशन ऐसा लिखा भी मिल जाएगा. ठीक है, डोंट माइंड. व्हाट वी आर इंटरेस्टेड इन राइट नाउ इज द ऑर्डर ऑफ दिस स्पीड, नथिंग एल्स. तो ये किसी टिपिकल कंडक्टर के लिए अगर हम कैलकुलेट करें, देखो ई क्या है, कांस्टेंट है, एम क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है. इलेक्ट्रिक फील्ड विल डिपेंड ऑन द वोल्टेज ऑफ बैटरी and the length of the conductor, and tau is relaxation time which is fixed for a given material at a given temperature. So ये सब नंबर अगर आप सब्सटीट्यूट करके कैलकुलेट करेंगे, you will find that Vd is typically very small, less than 1 millimeter per second. इसको as such ऐसे याद कीजिए. So this drift is the reason behind electric current. That is what I want you to understand at this stage. How does electric current depends on drift speed? What is the relationship between electric current I and drift speed Vd? Simple है, देखिए. This is a conducting wire, say a copper wire. There is a battery connected to it. I am not showing it. There is an electric field because of which all free electrons are moving towards left. So conventionally the direction of current will be towards right. Let us say the drift speed of electrons is Vd, cross sectional area of this wire is A. So what is current through this wire? This is the question that we wish to answer. Simple है. ऐसे सोचो, इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव कर रहे हैं. आप चाहो तो पॉजिटिव चार्ज के टर्म्स में सोच सकते हो, पॉजिटिव चार्ज इधर मूव हो रहा है, बट ओके, लेट अस थिंक इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन. इस क्रॉस सेक्शन से एक सेकंड में कितना चार्ज क्रॉस करेगा, ये जानने के लिए मैं ऐसे सोचता हूँ. देखो, वो जो रैंडम मोशन है, फॉरगेट अबाउट दैट मोशन, दैट डज नॉट कंस्टिट्यूट एनी करंट. सो फॉरगेट अबाउट रैंडम मोशन, जस्ट थिंक दैट the whole electron cloud is drifting in this direction with the drift speed Vd. यहाँ चप्पे चप्पे पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स, हर जगह बहुत सारे. तो किसी एक क्रॉस सेक्शन से एक सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन पास होंगे, हम ये सोचना चाहते हैं. इस कंडक्टर में एक लेंथ इमेजिन करो, Vd इंटू डेल्टा टी. Vd is drift speed, delta t is some time interval. अब मेरी क्लेम को सुनो ठीक से. मैं ये कह रहा हूँ कि डेल्टा टी सेकेंड में इस क्रॉस सेक्शन से ये सारे इलेक्ट्रॉन जो इस लेंथ में हैं वो सब के सब यहाँ से क्रॉस हो जाएंगे. अगले डेल्टा टी सेकेंड में इस क्रॉस सेक्शन से वो सारे इलेक्ट्रॉन क्रॉस करेंगे जो इस लेंथ के अंदर आपको दिखाई दे रहे हैं. क्यों? क्योंकि ये सभी इलेक्ट्रॉन Vd स्पीड से चल रहे हैं. फॉरगेट अबाउट दैट रैंडम मोशन, जस्ट थिंक ऑफ द एंटायर क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग स्लोली विथ स्पीड Vd. तो ये जो यहाँ का इलेक्ट्रॉन है वो डेल्टा टी सेकेंड में Vd इंटू डेल्टा टी लेंथ चल के यहाँ पहुँच जाएगा. ये जो इलेक्ट्रॉन है ये अगले डेल्टा टी सेकेंड में यहाँ पहुँच पाएगा क्या? आंसर है नहीं. ये डेल्टा टी सेकंड में Vd इंटू डेल्टा टी डिस्टेंस चलेगा, इतनी दूरी चलेगा, तो यहीं कहीं होगा. ये इलेक्ट्रॉन तो वेरी नेक्स्ट मोमेंट इसको क्रॉस कर जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन भी क्रॉस कर जाएगा. ये
इलेक्ट्रॉन भी डेल्टा टी सेकेंड में यहां तक पहुंच जाएगा, इसको क्रॉस कर जाएगा। तो इस वॉल्यूम के अंदर जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन हैं वो सब के सब इस क्रॉस सेक्शन को डेल्टा टी सेकेंड में जरूर क्रॉस करेंगे, जिसको मैं ऐसा नाम लिख देता हूं बातचीत में आसानी के लिए, ए बी सी डी। सिंपली यहां लिख रहा हूं, ऑल फ्री इलेक्ट्रॉन्स in the volume ABCD will cross through section AB in interval delta t. All free electrons which are there in volume ABCD, all free electrons which are there in volume ABCD will cross through the section AB in time delta t. Am I right? So let us assume that n is the number density of electrons. N is number of free electrons per unit volume. जैसे कॉपर के लिए लगभग देर आर 10 to the power 29 फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम। अगर हम कॉपर का एक बड़ा ब्लॉक लें, 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर ऊंचा, एक बड़ा सा ब्लॉक कॉपर का 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर, वॉल्यूम 1 क्यूबिक मीटर, उसमें टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो रफली 10 to the power 29 होंगे। इट्स अ वेरी लार्ज नंबर। So this n refers to that number. This n is number of free electrons present in unit volume inside this material. ये अगर कॉपर का वायर है तो इसके यूनिट वॉल्यूम में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, n। हम कह रहे हैं अगर इस वायर में आपने एक बैटरी लगाई, उस बैटरी ने एक इलेक्ट्रिक फील्ड E बनाया, उस इलेक्ट्रिक फील्ड ने सभी इलेक्ट्रॉन को धकेलना शुरू किया, इलेक्ट्रॉन के पूरे क्लाउड के पास एक ड्रिफ्ट स्पीड आ गई, तो ये पूरा का पूरा क्लाउड ऐसे इलेक्ट्रॉन का ऐसा मूव कर रहा है। इस क्रॉस सेक्शन से डेल्टा टी सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन पास होंगे? इसका आंसर है इस वॉल्यूम में जितने इलेक्ट्रॉन है सबके सब डेल्टा टी सेकेंड में यहाँ से पास हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन वीडी स्पीड से चल रहे हैं, तो यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है वो भी डेल्टा टी सेकेंड में वीडी इंटू डेल्टा टी ये डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगा और यहाँ से पास हो रहा हो, ये नहीं पहुँच पाएगा यहाँ, है कि नहीं? तो इस वॉल्यूम में जितने इलेक्ट्रॉन हैं सब के सब इस क्रॉस सेक्शन से पास हो जाएंगे डेल्टा टी सेकेंड में। दैट इज द ट्रुथ। सो लेट अस राइट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्रॉसिंग द सेक्शन ए बी इन इंटरवल डेल्टा टी is n into a into vd delta t। कैसे लिखा मैंने? ये वॉल्यूम कितना हुआ? लेंथ, ये लेंथ इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया a, इस सिलेंडर का वॉल्यूम क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू लेंथ, और यूनिट वॉल्यूम में n फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, तो इतने वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए? इतने, ऐसा। so many electrons will cross through this cross section in time delta t. How much charge has flown past that cross section in time delta t? The amount of charge that has crossed through that section in time delta t. Charge flow. Charge flow through section AB in interval delta t. Charge flow through this section in time delta t. इतने इलेक्ट्रॉन पास हुए, हर इलेक्ट्रॉन के पास E चार्ज है, तो कितना चार्ज पास हुआ? आंसर है E इंटू दिस,
this number of electrons which have crossed this section in time delta t. Each electron had charge E. So this is the total quantity of charge that must have passed through section AB in time delta t. So what is current through that section? Current, what is current? Charge flow, time taken. So that is equal to ENA VD. So this becomes the formula of current in terms of drift speed. NEA VD. A क्रॉस सेक्शनल एरिया का वायर है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट स्पीड VD है. इलेक्ट्रॉन्स की नंबर डेंसिटी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ दिस मटेरियल N है. E is charge on one electron. Then current through this wire is given by NEVD into A. Current density. Current density through this cross section will be I by A, and the same formula can also be remembered as J is equal to NEVD. इसको A से डिवाइड कर दो तो यहाँ करंट डेंसिटी की वैल्यू हो गई J is equal to NEVD. Now this is how I usually remember this formula, that if drift speed is VD, N is number density of electrons and E is charge on one electron, then current density at any location inside the conductor is given by this. ये ध्यान देना है कि इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में बेसिकली करंट है, राइट? अब देखो, सबसे पहले एक छोटा सा एग्जांपल करता हूं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं. मान लो एक टिपिकल कॉपर वायर जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया 4 मिलीमीटर स्क्वायर है, ठीक है, और इसमें करंट 5 एम्पियर है. ऐसा टिपिकल वायर घर में मिल सकता है आपको. क्रॉस सेक्शनल एरिया 4 मिलीमीटर स्क्वायर, इट इज क्वाइट अ थिन वायर, एंड current through this wire is 5 ampere. And number of free electrons per unit volume is, let us say, 10 to the power 29 per meter cube. What is drift speed of electrons in this wire? ये कॉपर का वायर है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इतने. दूसरा मटेरियल हो तो ये नंबर डिफरेंट होगा. पुअर कंडक्टर हो तो ये नंबर काफ़ी छोटा होगा. करंट इस वायर में 5 एम्पियर है, क्रॉस सेक्शनल एरिया 4 मिलीमीटर स्क्वायर है. व्हाट इज दी ड्रिफ्ट स्पीड? तो हम यहीं से कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूले से. इससे या इससे एक ही बात है. I by A इज करंट डेंसिटी. सो J इज इक्वल टू NEVD. J मतलब करंट 5 एम्पियर बाई क्रॉस सेक्शनल एरिया 4 मिलीमीटर स्क्वायर कन्वर्टेड इनटू मीटर स्क्वायर. So 5 divided by this ampere per meter square, ये current density है. This is 10 to the power 29 electron पे charge so many coulombs, and this is drift speed. So drift speed will be 10 to the power 10, 10 to the power 6, 10 to the power 4, 5 by 4, 5 by 4 into 1.6. So this will become into 10 to the power minus 4. Am I right? मीटर पर सेकेंड. चेक कर लीजिए प्लीज. तो ये मोटा मोटी, इसको 1 ही मान लेते हैं ना, क्या फ़र्क है. ये मोटा मोटी 10 to the power minus 4 मीटर पर सेकेंड हो गया. दैट इज 0.1 मिलीमीटर पर सेकेंड.
So the drift speed is 0.1 millimeter per second. The entire cloud of electron is moving only at a speed of 0.1 millimeter per second, whereas the random thermal motion that is happening inside every piece of conductor for the free electrons, for that motion the speed of a typical electron could be 10 to the power 5 meter per second. So very high number, whereas 100 of kilometer per second in simple bhasha, and this is typically very small compared to that. So that random motion, though it is there, it does not help in making any current. This drift speed, though it is very small, but this is actually responsible for electric current in any piece of conductor. Now, let us state the Ohm's law. अभी हमने ये कहा, ध्यान दीजिएगा, ये एक कंडक्टर है, चलिए बैटरी लगा देते हैं, V वोल्ट की बैटरी, L लेंथ का कंडक्टर, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड E, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी ड्रिफ्ट स्पीड Vd, और जो करंट है, करंट it is NEVD into A, या J is equal to NEVD, एक ही बात है. Now this can be written as, in place of Vd I can write, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, this is the formula for drift speed. मोटी बात भाई, drift speed is something which should be proportional to force acting on the electron. This is force. It should be inversely proportional to inertia, mass, and it should be directly proportional to relaxation time. एक इलेक्ट्रॉन को जितनी ज़्यादा समय मिलेगी एक्सेलरेट होने की, उतनी ज़्यादा उसकी ड्रिफ्ट स्पीड होगी. तो ड्रिफ्ट स्पीड जितना ज़्यादा समय मिलेगा एक कोलिजन से अगले कोलिजन के बीच में, उतनी देर तक एक्सेलरेट हुआ, उसके प्रोपोर्शनल होना चाहिए. ड्रिफ्ट स्पीड फोर्स के प्रोपोर्शनल होना चाहिए. ड्रिफ्ट स्पीड मास इनर्शिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होना चाहिए. तो कभी भूल जाए तो ऐसे याद कर लीजिए फॉर्मूला. ये ड्रिफ्ट स्पीड NEVD, सो J इज इक्वल टू NE स्क्वायर बाई M टाउ इंटू E. अब देखो, एक गिवन मटेरियल कॉपर के लिए नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम फिक्स्ड है, भगवान ने बनाया है. इलेक्ट्रॉन का चार्ज मास भगवान ने बनाया है. रिलैक्सेशन टाइम ये टेम्परेचर के साथ थोड़ा बदलता है. नाउ अज्यूमिंग कि हम एक फिक्स टेम्परेचर पे हैं, सही 25 डिग्री सेल्सियस, तो ये पूरी की पूरी क्वांटिटी एक कांस्टेंट है फॉर ए गिवन मटेरियल. This quantity we will write it as sigma. This is a constant for a given material at a given temperature. अच्छा बता दो, टेम्परेचर को थोड़ा सा बढ़ाते हैं, सिग्मा पे क्या असर पड़ेगा? एनी गेस? इस नंबर को सिग्मा बोल रहा हूं. टेम्परेचर को थोड़ा सा बढ़ाया, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज बदल जाएगा? नहीं. मास इलेक्ट्रॉन का बदलेगा? नहीं. नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, वो भी नहीं बदलेगा. टाउ रिलैक्सेशन टाइम बदल जाएगा. टेम्परेचर बढ़ाने से थर्मल मोशन की स्पीड बढ़ गई, रैंडम मोशन की स्पीड बढ़ गई, एक कोलिजन से दूसरे कोलिजन के बीच का टाइम इंटरवल घट गया, जल्दी जल्दी कोलिजन होने लगे, रिलैक्सेशन टाइम घट गया, तो ये सिग्मा डिक्रीज हो जाएगा. तो टेम्परेचर बढ़ाने से टाउ डिक्रीज होगा, सिग्मा डिक्रीज हो जाएगा. एनीवे,
सो J इज इक्वल टू एनी VD को हमने ये लिख दिया. नाउ वी कैन राइट J इज इक्वल टू सिग्मा E. दिस होल थिंग इज अ कांस्टेंट एट ए गिवन टेम्परेचर फॉर ए गिवन मटेरियल. नाउ this particular rule that J is directly proportional to E in any conductor, the current density is directly proportional to electric field inside the conductor. J is directly proportional to E. The proportionality constant is sigma. It is also a constant at a given temperature. This particular law is known as Ohm's law. This is not the usual form that you have studied in your junior classes. You can say this is Ohm's law in microscopic form. Microscopic form. मैक्रोस्कोपिकली बड़े स्केल पे देखें तो यहाँ करंट कितना है, क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, ये सब चीज़ें हम नहीं बोल रहे हैं. हम सिंपली बोल रहे हैं कि अगर इस कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड E है तो किसी भी लोकेशन पे पर यूनिट एरिया जो करंट होगा वो E के प्रोपोर्शनल है. E डबल कर दोगे तो यहाँ जो भी करंट था वो डबल हो जाएगा. दिस इज व्हाट वी आर सेइंग. E हाफ कर दोगे तो इस क्रॉस सेक्शन के थ्रू जो भी करंट था वो हाफ हो जाएगा. दैट इज व्हाट वी आर सेइंग. किसी वजह से यहाँ पर E ज़्यादा है तो यहाँ करंट ज़्यादा होगा, करंट डेंसिटी ज़्यादा होगी. सॉरी, दिस इज व्हाट वी आर सेइंग. सो वी आर टॉकिंग माइक्रोस्कोपिकली in a sense that we are talking about any location inside the conductor, and we are talking about that particular location only. We are not talking about the conductor as a whole. हम पूरे कंडक्टर के बारे में बात नहीं कर रहे हैं कि कितना करंट है यहाँ. हम तो सिंपली ये कह रहे हैं कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड E है तो यहाँ करंट डेंसिटी E के प्रोपोर्शनल. अगर यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है तो यहाँ करंट डेंसिटी अलग होगी. वी आर टॉकिंग अबाउट वन पर्टिकुलर लोकेशन, microscopic location. There is Ohm's law in microscopic form, and this has been derived using all microscopic considerations. We have been thinking about motion of free electrons, which are microscopic particles. That's why the name microscopic form of Ohm's law. Okay. Now this constant sigma is known as electrical conductivity of the material, right? From here only we can understand that sigma decreases with rise in temperature because tau decreases. टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रिलैक्सेशन टाइम घट जाएगा, इलेक्ट्रॉन जल्दी जल्दी टकराने लगेंगे, स्पीड बढ़ गई. रिलैक्सेशन टाइम अगर घट गया तो ये सिग्मा घट गया, कंडक्टिविटी कम हो गई. टेम्परेचर बढ़ने से कॉपर की कंडक्टिविटी घट जाती है. सो J इज इक्वल टू सिग्मा ई. सिग्मा एक कांस्टेंट है. टेम्परेचर फिक्स, मटेरियल फिक्स, तो सिग्मा कांस्टेंट है. 25 डिग्री सेल्सियस पर कॉपर का सिग्मा फिक्स्ड है. And current density is sigma into E. This is known as Ohm's law. Now, let's talk about this wire. J can be written as I by A. J is current density, current per unit area. This is equal to sigma into E. Let us talk about this wire. What is electric field in this wire? Answer is, if V volt is the potential difference between the two ends, so V by L. So V by L. So the current becomes equal to, rather let me write it like this, V is equal to L by sigma A into I. V is equal to L by sigma A into I. कुछ नहीं, J की जगह करंट पर यूनिट एरिया I A लिखा, E की जगह V by L लिखा. नाउ दिस पर्टिकुलर क्वांटिटी is known as resistance of the given piece of conductor. This number
is known as resistance of the given piece of conductor. Given piece of wire I am writing. So this number R is resistance of this wire. It is L by sigma A and V is equal to IR. So this law is essentially same as V is equal to IR, which you have studied in your junior classes as Ohm's law. So it is the same law. This is same as V is equal to IR. And resistance of a conductor like this, a cylindrical conductor of length L, cross sectional area A, is given by L by sigma A. What is sigma? Conductivity of the material, copper है कि एल्युमिनियम, उस पर सिग्मा डिपेंड करता है. This is also written as rho L by A, where rho is inverse of sigma and it is known as resistivity of the material. It is known as resistivity of the material. Right? I request you to write the unit and dimensional formula of rho as well as sigma on your own. Think about unit of rho and sigma and also write their dimensional formula. So students, आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ पाएंगे. नेक्स्ट क्लास में हम ओम्स लॉ को यूज़ करके कुछ क्वेश्चंस करना सीखेंगे.